جس کو ہم سب سننا چاہتے ہیں، ہم سب کے ہر دل عزیز عالی جناب سلمان خورشید صاحب کو، جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے امیدوار ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا زوردار تالی بجا کر ان کا استقبال کریں۔ جہاں ہے مجھے لے کر یہاں آئی ہے اور آپ سب حضرات اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ کوئی بات تھی کہ جب ہمارے سب ساتھی یہاں اپنی بات رکھ رہے تھے اور آپ سامنے بیٹھے تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، بہت سارے وہ چہرے یہاں مجھے دکھے جو چہرے میرے بچپن سے جڑے ہیں۔ یہاں اوکھلا اور جامعہ نگر میں میرا بچپن گزرا، مجھے یہاں کی سڑکوں پر گلموہر کے پیڑوں کو دیکھ کر پہلی دفعہ شوق ہوا تھا کہ میں تصویریں کھینچوں اور اسکول میں لے جا کر اپنے دوستوں کو دکھاؤں کہ جامعہ کتنی خوبصورت سی جگہ ہے۔ اور پھر یہاں گاؤں میں جا کر اوکھلا گاؤں میں جا کر گھر گھر جا کر میں بلی کے بچے ڈھونڈا کرتا تھا اور بلی کے بچے لا کر گھر پالا کرتا تھا، وہ مجھے سب یاد آ گیا۔ اور پھر میں نے اپنے آپ سے یہ پوچھا کہ الیکشن لڑنے کا، الیکشن تو بہت بڑے ہیں زندگی میں، لیکن الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتی ہے جستجو، کیا ہوتی ہے خواہش، کیا ہوتا ہے ایمبیشن؟ ظاہر ہے جو الیکشن ہم لڑتے ہیں تو یہ کہہ کر لڑتے ہیں کہ ہمیں خلق خدا کی خدمت کرنی ہے، ہمیں عام جنتا کا کام کرنا ہے، سرو کرنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ایک اور بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جو بات چھپی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں کچھ بن پائیں، عوام کی نمائندگی کر پائیں، ہم کچھ بن پائیں، بڑے عہدے پر پہنچ پائیں۔ تو اکثر مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ تو بہت بڑے عہدوں پر رہ چکے ہیں، اب اسلامک سینٹر آپ کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت گہری دلچسپی ہے اسلامک سینٹر کا پریزیڈنٹ بننے میں، اور یہ شاید بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ کچھ ادارے اور اندریش کے بیچ کا سوال اٹھ گیا ہے، اور اس میں ادارے کا تقاضا میں منع کروں تو بزدل کہلاؤں، اس لیے میں آیا۔ اس لیے ان سبھی ہونہار لوگوں نے مجھ سے التجا کی کہ آپ آ جائیے، ادارے کو بچانا ہے، آپ آ کے بچا دیجیے۔ اگر کوئی ایسا راستہ ہوتا کہ بنا الیکشن لڑے میں ادارے کو بچا پاتا تو میں ان سب سے کہتا کہ نہیں، الیکشن نہیں لڑوں گا، ادارے کو بچا لوں گا۔ شاید کچھ راستے ہوتے، لیکن لگتا ہے لوگوں کو کہ آپ اگر نہیں آئیں گے اور اس میں مبتلا نہیں ہوں گے اور جو بھی ہو رہا ہے اس میں آ کر آپ نہیں بھیڑیں گے تو آپ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو بزدلی کا الزام نہ لگے تو میں آ گیا، لیکن آپ نے کیا سوچا، کیا سمجھا؟ جب میں بیٹھا ہوا تھا نامینیشن فائل کرنے کے لیے تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ کو اتنا شوق ہے تو میں اپنے کاغذ واپس لے لیتا ہوں، آپ میری جگہ وائس پریزیڈنٹ کی سے کاغذ بھر دیجیے۔ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں ہنسوں کہ رو کہ یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا ڈیسپریٹ ہوں کہ پریزیڈنٹ شپ نہیں ملتی تو وائس پریزیڈنٹ شپ لے لوں گا، اور وائس پریزیڈنٹ شپ نہیں ملے گی تو بی او ٹی لے لوں گا، اور بی او ٹی نہیں ملے گی تو میں ایگزیکٹو میں آ جاؤں گا، لیکن میں ایک نیا اپنا کریئر یہاں سے شروع کروں۔ دیکھیے، کریئر اگر شروع کرنا ہے تو واپس اتر پردیش چلا جاؤں، اتر پردیش میں فاروق آباد چلا جاؤں۔ مجھ سے فاروق آباد کی سیٹ چھین لی گئی، وہ ہم نے ایک مقصد کے لیے، وہ ہمارا جو بڑا مقصد تھا کہ ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو جواب ہم دے سکیں اور ہندوستان میں ایک بار پھر زمین بنا لیں، ان لوگوں کے لیے زمین بنا لیں جن کے بزرگوں نے ہندوستان کا ایک تجربہ اور ہندوستان کا ایک مقصد سمجھا تھا اپنے دل میں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر فاروق آباد سے مجھے جگہ نہیں ملتی ہے اور کسی اور کو دینی ہے، کسی اور پارٹی کو دینی ہے تو یقیناً میرے لیے کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے، میں دوں گا۔ تو فاروق آباد کی سیٹ جو قربان کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی یہ سمجھے کہ اس کو بڑا شوق ہے کہ وہ اسلامی ادارے میں ہمارے کلچرل سینٹر میں آ کر
किसी भी ओहदे पर काबिज होना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ये समझ लीजिए कि मुझे दिलचस्पी सेंटर में है, सेंटर के किसी ओहदे पर नहीं है मेरी दिलचस्पी। और इसीलिए जब वो लोग ये कहते हैं कि आप तो सिर्फ 3 साल रह पाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि खुदा का फजल है, ये तो खुदा का शुक्र करो कि 3 साल रह पाऊँगा। जो 10 साल रहे हैं, 20 साल रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? और जो 30 साल में कुछ नहीं कर पाता है तो वो 5 साल में नहीं कर पाता है, वो 10 साल में नहीं कर पाता है। जो करना है वो यहाँ मौजूद है, आप लोग मौजूद। जो करना है वो मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक मौका देना है आप सबको कि आप आएँ और वहाँ जमहूरी निज़ाम से आप जाकर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। और ये मुमकिन है और ये होगा। इदारे हमने देखे हैं जिन इदारों में अगर जमहूरी निज़ाम आ जाए तो वो इदारे शक्ल बदल लेते हैं अपनी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा इस्लामिक सेंटर के साथ होगा। हम तहज़ीब और तमद्दुन का एक मरकज़ है, हम सब बातें यहाँ करते हैं, लेकिन तहज़ीब तमद्दुन की बात यहाँ नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है कि इस्लामिक सेंटर बड़ी आसानी से, जिस किस्म के होनहार लोग इस्लामिक सेंटर के मेंबर हैं, उनको सिर्फ मदऊ करके, उनको परसुएट करके ये कहा जाए कि ज़रा वक्त आप इस्लामिक सेंटर को दे दीजिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस्लामिक सेंटर का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। और लोग कभी पूछेंगे कि जाना है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में जाकर ये पता लगना, ये करना है पता कि हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो यकीनन उनसे कहा जाएगा आप दिल्ली जाएं तो इंडिया इस्लामिक सेंटर में ज़रूर जाएं। वहाँ जाकर आपको पूरी तस्वीर देखने को मिल जाएगी जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की। और मैं इस बात को भी वाज़ेह कर दूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तस्वीर हिंदुस्तान के मुसलमानों की बिरादराने वतन से अलग नहीं हो सकती, और ये हमारी खुशकिस्मती है। बहुत लोग समझते हैं कि इस्लामिक सेंटर है, इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, तो यहाँ सिर्फ मुसलमान होंगे, लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ गैर मुस्लिम बहुत सारे, बहुत उम्दा लोग गैर मुस्लिम भी हमेशा हमारे साथ शरीक हैं। और इसलिए जो तस्वीर यहाँ से जाएगी वो एक मुश्तरक तस्वीर जाएगी, यहाँ से कॉम्पोजिट कल्चर की तस्वीर जाएगी, यहाँ से वो बात जाएगी कि हमारा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में है अपने बिरादराने वतन के लिए है, और वो बात कही जाएगी। और जब हमारी बात हम सिर्फ नहीं बल्कि हमारे हिंदू, जैन, सिख साथी हमारी बात कहेंगे, तो हिंदुस्तान की वो तस्वीर, जिस तस्वीर के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तस्वीर के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो तस्वीर एकदम पूरे रंग में सामने आ जाएगी। ये है मेरा एम्बिशन, ये है मेरा विजन। और ये देखिए, ये बहुत आसानी से हो सकता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने जब शुरुआत की थी और 2 पुराने मकान थे जिसमें शुरुआत हुई थी। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने वो पुराने 2 मकान देखे थे। चौधरी आरिफ साहब मुझे कहीं से पकड़ के लाते थे, बताते थे, दिखाते थे, और उसके बाद देखते देखते ये आलीशान इस्लामिक सेंटर बना है। इस्लामिक सेंटर को खुद कोचिंग की दुकान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम फैकल्टी नहीं रख सकते हैं, हमारे पास कमरे नहीं हैं, हमारे पास हॉस्टल्स नहीं हैं, लेकिन हमारा वजूद हो तो हम जामिया से बात करें, हम अलीगढ़ से बात करें, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बात करें और कहें कि हर साल हम आपको 30 नौजवान बच्चे चुन कर भेजेंगे और हम उनके लिए पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं क्यों हम ऑक्सफोर्ड से इंतज़ाम करें। ऑक्सफोर्ड में एक बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, अलीगढ़ से पढ़े हुए, वहीं पर फरहान निज़ामी साहब उसके डायरेक्टर हैं। तो हम क्यों ना ऑक्सफोर्ड से कुछ ये ताल्लुक़ रखें कि हम हर साल आपको 3, 4, 5 होनहार बच्चे हम ऑक्सफोर्ड भेजेंगे, वो जाकर वहाँ 6 महीने, साल भर रहें, ऑक्सफोर्ड से कुछ सीख कर आएँ। मुमकिन है उनको इतना कामयाबी वहाँ मिले, इतनी कामयाबी मिले कि वो एक और वहाँ इदारा बनाएँ। इदारे, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद है। अपने इंस्टीट्यूशन को बरकरार रखना और इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना। अगर हम यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं बिल्ड कर सकते तो कम से कम इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स तो हम बना सकते हैं। यहाँ से हम बिल्डर्स पूरे हिंदुस्तान में भेजें, जिस तरह से अलीगढ़ के इंजीनियर्स कहाँ नहीं है, दिल्ली में है, बम्बई में है,
दुबई में है, सऊदी में है, जब अलीगढ़ इंजीनियर बना के भेज सकता है तो इस्लामिक सेंटर क्यों नहीं इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स बना के पूरी दुनिया को भेज सकता है। ये मेरे दिल में ये सवाल आता है। और फिर मेरे दिल में ये सवाल आता है कि हम यहाँ बैठें तो कैसी गुफ्तगू हो। हमसे कोई पूछे हिंदुस्तान में कि हम अलीगढ़ के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर बहस सुनने जा रहे हैं और इस पर आपकी भी कुछ राय है, क्या हमारी राय उस पर नहीं होगी? क्या हमारी राय पर्सनल लॉ पे नहीं होगी? क्या हमारी राय यूसीसी पे नहीं होगी? ये सियासी बातें नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी, कौमी ज़िंदगी का वो जुज़ है जिसके बिना हिंदुस्तान नहीं रह सकता और हम हिंदुस्तानी नहीं रह सकते। ये हमारी कौमी ज़िंदगी का जुज़ है जिसको हमें ज़िंदा रखना है। एक आखिरी बात बताओ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा सियासी लोग यहाँ नहीं होने चाहिए, सियासी लोग बहुत जगह नहीं होने चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि सियासी लोग सियासत में भी नहीं होने चाहिए। वहाँ सियासत बिगाड़ते हैं, यहाँ कुछ और बिगाड़ते हैं। लेकिन सवाल सियासत का नहीं है, सवाल इसका है कि सियासत के अलावा भी किसी शख्स की कोई पर्सनालिटी का हिस्सा होता है जो वो आपके सामने लाकर आपको ऑफ़र कर सके। सिर्फ सियासत ही नहीं, गैर सियासी भी हिस्सा एक ज़िंदगी में होता है, उसको हम ऑफ़र कर सकें। मैं आपसे ये बताऊं कि कल मैंने अलीगढ़ में ये कहा कि मैं जब उतरा यहाँ पर चुनाव में उतरा तो मैंने अपने सियासी साथियों से, अपने रहनुमा से ये नहीं सवाल पूछा क्या मैं इस्लामिक सेंटर का चुनाव लड़ सकता हूँ। मुझे खौफ था, डर था कि वो कहें कि यूपी जाना है, आप यहाँ क्यों लड़ रहे हो, अभी जाओ यूपी चले जाओ। तो इसलिए उससे मैंने पूछा नहीं, इसलिए नहीं पूछा कि उनका दखल हमारे सेंटर में नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बीजेपी में है और कोई किसी और पार्टी में है तो वो दखल ना दे, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी का दखल यहाँ दूँगा। ना यूनिवर्सिटी में, ना इस्लामिक सेंटर में, ना हमारी कौमी ज़िंदगी में सियासी पार्टियों का दखल होना चाहिए। उनका दखल वहाँ होना चाहिए जहाँ उनका दखल है पार्लियामेंट में, जहाँ इस मुल्क की पॉलिसीज़ बनती हैं वहाँ दखल होना चाहिए। जहाँ कोई कमसिन है, कोई कमज़ोर है, कोई खौफज़दा है, कोई डरा हुआ है, किसी पर जुल्म हुआ है, वहाँ सियासी लोगों की शिरकत होनी चाहिए, वहाँ उनका दखल होना चाहिए। जैसे सोशल इदारे, कल्चरल इदारे हैं, यहाँ दखल नहीं होना चाहिए। हो तो इतना ही हो कि वो दूर से ये कहें कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम पूरी हिमायत के साथ, पूरी हमदर्दी के साथ इनको सपोर्ट करते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपनी कौमी ज़िंदगी में अलग अलग हिस्से मान लें? ये मान लें कि ये काम हमको करना यहाँ इसलिए है कि ये हमारी जमहूरी निज़ाम से अलग नहीं है। जमहूरी निज़ाम अगर हमें कायम रखना है इस मुल्क में तो उसकी शुरुआत वहीं होगी जहाँ इस्लामिक सेंटर है। इस्लामिक सेंटर जमहूरी होगा तो हिंदुस्तान जमहूरी होगा, इस्लामिक सेंटर जमहूरी नहीं होगा तो आने वाला हिंदुस्तान भी जमहूरी नहीं होगा। और अगर जमहूरी हो गया, आप लोगों की सबकी शिरकत हो गई, आपकी राय और मशवरे से इस्लामिक सेंटर चला तो यकीनन इस्लामिक सेंटर एक बहुत बेहतर सेंटर बनेगा, ऐसा मेरा यकीन है। तो आपसे इल्तिजा सिर्फ यही करनी है कि यहाँ पर आप सिर्फ हमारे लिए वोट ना दें, हम सब के लिए सिर्फ वोट और सपोर्ट ना दें, बल्कि ये इरादा पुख्ता कर लें अपने दिल में, ये इरादा पुख्ता कर लें कि सलमान खुर्शीद और उनका पैनल सिर्फ महदूद 14 लोगों का पैनल नहीं है, आप सब पैनल हैं। जब आप सब अपने आप को पैनल मानेंगे, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जब आप सब पैनल अपने आप को मानेंगे तो यकीनन इस्लामिक सेंटर का जो मकसद है वो हम पूरा कर पाएंगे। और अगर हमने पूरा कर लिया तो अपने आने वाले बच्चों को हम ये कह सकेंगे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस सेंटर को मेरे बच्चों रखना संभाल कर। बहुत बहुत शुक्रिया सब। ये सेंटर के हक में बेहतर है और वो सेंटर का सदर न कोई बोलते हैं। अभी फैजान साहब कह रहे थे, हमारे साथी हैं, अपने बेटे को खड़ा कर लिया, खुद खड़े हो गए। अब इन दोनों के बाद एक नए बात को भी ले आना चाहिए था, उनको भी खड़ा कर देना चाहिए था, क्योंकि उनको अगर ये उम्मीद है कि हम सब जीत रहे हैं
اور وہ جیسا الٹا سیدھا بھی میری سبیہ باجی کہہ رہی تھی کہ ہم جیت رہے ہیں، کسی نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم 400 پار، وہ اسی خواب میں ہے، وہ اسی طرح سے ہے۔ آج سینٹر کو بچانے کی، سینٹر میں ڈیموکریسی لانے کی، سینٹر کے وقار کی، اور سینٹر کا جو مقصد تھا، جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا خواب، ابھی بہت سے نام گنائے جا رہے تھے، اس میں مفتی عتیق الرحمان صاحب تھے، چودھری عارف صاحب تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اندرا جی نے اس کو جگہ دی، لیکن وہ مقصد میں بدور آواز کہتا ہوں وہ پورا نہیں ہوا۔ عمارت بن گئی، اگر وہ یہ کہتے ہیں کوئی صاحب کہ میں نے سینٹر کے لیے یہ کیا، تو بھیا تمہارے سینٹر نے اور اس قوم نے اور ان کے نمائندوں نے اور جتنے ممبر ہیں انہوں نے 20 سال 25 سال دیے، 1 صدی کا چوتھا حصہ۔ شرم آنی چاہیے ان کو، تو مطلب انتہا ہے گراوٹ کی۔ ایک پریسیڈنٹ رہتا ہے 20 سال ہو گئے، بی او ٹی کا الیکشن لڑے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن سینٹر کو بچانے کے لیے جو آدمی، جس آدمی کو وہ لے کر آئے ہیں پریسیڈنٹ کے امیدوار کے لیے، سلمان بھائی ہمیں ہدایت دے دیتے ہیں، کل بھی کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے، کوئی تہذیب سے گر کے بات نہیں کرنی ہے۔ ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر ہیں سلمان بھائی۔ ایک ایسا آدمی جو اس کو وہ لے کر آئے ہیں، آج پیپر میں دیکھا ہوا، میں نے کب کہا تھا یہ بات کہ ہمارے تمام ساتھیوں کو اور اس سینٹر کو سب سے دور رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کی نیت ہے ہندوستان میں، جتنے آپ کے ادارے ہیں، جتنے انسٹیٹیوشن ہیں، ان پہ نگاہ ہے، اس میں سینٹر بھی ہے۔ اور سینٹر کو میں ختم کرتا ہوں اپنی بات، سینٹر کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ایک دانشور آدمی کی ضرورت ہے، ایک قانون دان کی ضرورت ہے، ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے، چاہے علی گڑھ میں برا وقت پڑا ہو، چاہے جامعہ پر برا وقت پڑا ہو، چاہے ہندوستان کے کسی کونے میں برا وقت پڑا ہو، ایک وکیل کی حیثیت سے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت ہے۔ ہم سب، میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ پوری ٹیم کو جتائیے۔ میں ٹیم کی بات کیوں کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ میں کھڑا ہوں۔ میں نے بورڈ کی میٹنگ میں دیکھا ہے، اگر کوئی بورڈ میں جو اختلاف ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم خیال لوگ، اچھے لوگ، اب موجودہ سلمان صاحب سے جو متفق ہیں ان کی رائے سے، جو ان کی پوری زندگی دیکھی ہے، یہ جو سینٹر کو عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ دیتا ہے عزت کو، اور اس کا وقار قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اس بلڈنگ کو اونچا بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک ہو کر پورے پینل کو ووٹ دینا پڑے گا۔ کیونکہ جب سلمان بھائی صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر بورڈ کی میٹنگ لیں اور اپنی رائے رکھیں تو لبیک 12 کے 12 لوگ کہیں کہ سلمان صاحب شروع کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔ غنیمت تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمارے اسلامک سینٹر کا وہ وقت آیا ہے کہ اس میں الیکشن کا وقت آ گیا ہے، کم سے کم الیکشن ہو رہا ہے، اس کی کمپیننگ ہو رہی ہے۔ نہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حالات جو ہیں وہ اور بدترین ہو گئے۔ شکر ہے اللہ کا کہ الیکشن ہو رہا۔ اب اس میں ظاہر انتخابات تو میرا تعلق اسلامک سینٹر سے قریب 30-35 سالوں کا ہے۔ جب میں پڑھتا تھا علی گڑھ میں اور ہم یہاں آتے تھے، ایک بار سیکنڈ ہوم آف علی گیری اسلامک کلچرل سینٹر، اور پچھلے 4 بار جیسے کہا گیا کہ صاحب پچھلے 4 بار کا 20 سال کا ایک ریکارڈ ہوگا، تو پچھلے 4 بار میں اگر یہ کہا جائے کہ صاحب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارا اسلامک سینٹر میں کچھ نہیں ہوا، پچھلے 20 سالوں میں ہوا، بہت اچھا ہوا یا اچھا ہوا، اس میں ضرور بات ہو سکتی ہے۔ جو ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں ہم کمپیئر اگر کریں گے تو ہمارے پاس ایک
मॉडल होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए। पिछले 20 सालों में एक ही आदमी की सदारत रही, वो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की, तो हम उसमें कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा वक्त बेहतर था। 2009 से 2014 के लिए अगर सलमान साहब को इलेक्ट किया जाता, उनकी कारगुजारी देखी जाती, तो हम कहते कि भाई उस वक्त का अच्छा था या उस वक्त खराब था। हमारे पास पैमाना वैसे मौजूद है पिछले 40 सालों का, 1984 में इस इदारे का बुनियाद रखी गई और पहले 20 साल अगर आप देखते हैं, यानी सिराज कुरैशी की सदारत से पहले के 20 साल, उसमें इस सेंटर के तमाम मकासद को पूरा किया गया था। यहाँ कोचिंग भी होती थी, यहाँ रिसर्च पेपर भी होते थे, यहाँ जर्नल भी निकलता था और यहाँ तमाम वो मकासद और इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव पूरे किए जाते थे। उस जमाने में, जिस जमाने में एक खंडर इमारत थी और यहाँ कोई ऐसी चीज और रिसोर्सेज जो थे वो ना के बराबर होते थे। यहाँ तमाम इंटरफेथ डायलॉग होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी और उस जमाने के मायनाज लोग उसमें हिस्सा लेते थे। जब से पिछले 20 सालों में सिर्फ एक चीज ऐसी हुई है जिसको मैं कहूँगा कि माइलस्टोन साबित हुआ ये सेंटर, जिसमें इसका इनॉग्रेशन हुआ 2006 में। वो जरूर एक इसका माइलस्टोन है। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के नाम पे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मैं पिछले 18-20 सालों में कुछ देखूँ। मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा, बराबर में हमारे इस दिल्ली शहर में उसके बिल्कुल एडजेसेंट एक जगह है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जो हमारे इस्लामिक सेंटर से लगी हुई है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में और इस्लामिक कल्चरल सेंटर में सिर्फ 22 सालों का फर्क है और इन 22 सालों में, यानी 1962 में जो बुनियाद हुई थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की और 1984 में बुनियाद इस्लामिक कल्चरल सेंटर की रखी है। तकरीबन ऑब्जेक्टिव्स और एम्स जो हैं वो एक हैं। बस ये मान के चला जाए कि इस्लामिक सेंटर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको थोड़ा सा मुख्तसर करके उसका मुख्तसर हिस्सा है जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का है। वो तमाम चीजें वहाँ हुई एज पर देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो हमारे यहाँ कमी है और इन सब चीजों के लिए हमें एक ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो उन सब चीजों को समझे और इसके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरा करे। इमारत बहुत अच्छी बनी है, नो डाउट, इमारत की साफ सुथरी इमारत है, लेकिन उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता, इसको बनाने का मकसद पूरा नहीं होता। मेरा अपना अंदाजा है और मुझे उम्मीद है पूरी कि सलमान खुर्शीद साहब जैसी शख्सियत आती है अगर इस्लामिक सेंटर में, तो वो तमाम मकासद पूरे होंगे और जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो भी इंशाअल्लाह पूरे होंगे। मेरी गुजारिश है कि सलमान खुर्शीद साहब का साथ दें इसमें और उनको इस्लामिक सेंटर के सदर के लिए मुंतखब करें। शुक्रिया। बहुत बहुत। तो सब लोगों को इस तरह से वोट करना है जो सोच कर रहे हों और अपने सेंटर की बका के लिए कर रहे हों। और एक बात और छोटी सी कि हमारे सेंटर की इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, ऑल दीज 4 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। मैंने बहुत सी मीटिंग्स अटेंड की हैं, लेकिन आज की इस मीटिंग में मुझे बहुत समझदार, बुजुर्गार और क्रीम ऑफ द सोसाइटी दिखाई दे रही है और ऑल दी साइड्स। तो आप लोगों से कुछ कहा जाए, मैं ये नहीं समझता ऐसा किया जाए, बल्कि आप लोग खुद बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स हैं और इस हिस्टोरिकल तालीमी इदारे में बैठकर हम बहुत अच्छी बातें अभी अपने पैनल के उम्मीदवारों से सुनने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं बताया गया था मुझे बोलना है। बस मैं अपने दर्द को जो दिल का है और जो देख रहा हूँ मैं उसको इन्हीं अल्फाज में बयान करूँगा। वोट विद कॉन्शियंस एंड वोट फॉर द बेस्ट एंड वी आर हेयर सो वी फील दैट वी विल बी द बेस्ट फॉर यू। और ये जुमला मैंने प्रणब मुखर्जी साहब से भी कहा था कि क्योंकि मैंने 2 प्रेसिडेंट्स को ट्रीट किया है तो आई विल बी द बेस्ट डॉक्टर फॉर यू, और उन्होंने इसी जुमले पर मुझे अपॉइंट कर दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं, कभी कभी अच्छे लोग सामने होते हैं
اور وہاں جب ہم بیلٹ پہ ٹک کرتے ہیں ہمارا ہاتھ پھسل جاتا ہے. یہ میں نے بھی بہت بار فیل کیا, ناٹ ان اسلامک سینٹر الیکشن بٹ ان آل سچ مومنٹس, کہ اس وقت ہم واقعی میں اس وقت ہم کو دل سے نہیں دماغ سے کام لینا چاہیے. اور میں یہی گزارش کروں گا, اور چونکہ پینل میں میری وائف بھی ہے اس لیے میں لگاتار میٹنگس میں آ رہا ہوں, اور میرے تمام دوست میں یہاں دیکھ رہا ہوں. آپ سب کا آنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہم سب کی طرف سے, اور اگلی میٹنگس میں کچھ باتیں رکھتا رہوں گا. اس وقت یہی چیز ذہن میں تھی کہ ڈگنیٹی آنر کو بچائیے, اس کی انٹیگریٹی کو بچائیے, اپنے سینٹر کو بچا لیجیے, پلیز بچا لیجیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محسن ولی صاحب. جیسا کہ آپ نے کہا چوز دا بیسٹ, میں یہی کہوں گا ہیئر از دا بیسٹ پینل انڈر دا لیڈرشپ آف سلمان خورشید صاحب. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جو بیسٹ ٹیم ہے اس کو چنیے. اسی کے ساتھ اب میں گزارش کروں سینٹر کی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامک کلچر سینٹر کو بچایا جائے, کیونکہ مسلمانوں کا وہ ایک ادارہ ایسا ہے جس سے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا جا سکتا ہے. ہم سلمان خورشید صاحب کو جو دیکھ رہے ہیں یہ اچھے خاندان کے شخص ہیں. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی ان کی حصہ داری رہی ان کے پریوار کی. اگر یہ آتے ہیں تو اسلامک سینٹر کے لیے یہ بہت کام کریں گے. ہر ووٹر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خالی سلمان صاحب کو نہیں جتانا. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامک سینٹر کی بقا کو بچانا ہے. اگر ہم نے اس کو وراثت بنا دیا, جیسا کہ 20 سال سے وراثت بنا ہوا ہے, تو یقیناً اس ادارے کو نقصان ہوا. ہم سلمان صاحب کے لیے آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں, اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے جتنے جان پہچان کے ووٹر ہیں, میں نے 100 لوگوں سے کانٹیکٹ کرا اس میں, کہ میں سلمان صاحب کے لیے چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے, اپنی جانب سے, کہ گھر آج مجھ کو اپنا گلستان سا لگے ہے. یہ کون مسافر ہے جو مہمان سا لگے ہے, ہندو سا لگے ہے نہ مسلمان سا لگے ہے, یہ شخص میری آنکھ کو انسان سا لگے ہے. اس لیے انسانیت کو جتانا ہے اور اسلامک سینٹر کو بچانا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جتنے بھی ہمارے ٹائرس پر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, سلمان صاحب ہیں, سب کے الگ الگ ایکسپیرینسز رہے ہیں. میں بڑے غور سے سن رہی تھی کہ کس طریقے سے, اور ایک میرے بھی بڑے تھے, انہوں نے کہا کہ سلمان صاحب کے لیے انٹروڈکشن دینا, مجھے لگتا ہے وقت کی ہم خرابی کر رہے ہیں, کیونکہ سلمان صاحب وہ شخصیت ہیں جو کسی نہ ہر حال میں کسی نہ کسی سے, جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پرسنل ایکسپیرینسز سے جڑے ہوئے ہیں. اور میرے بھائی پرویز بھائی کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ابھی مجھے بولنے کا موقع دیا. میں یہاں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں نہیں آئی, بلکہ میں پرسنل کیپیسٹی میں اپنی بات رکھنا چاہوں گی, اور آپ سے تھوڑی سی باتیں بہت کم وقت لیتے ہوئے, کہ ہم اس اوکھلا کو, شاہین باغ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں سے NRC کا موومنٹ شروع ہوا. اور NRC کے موومنٹ میں آج بھی میرے بھائی بہن ساتھ میں, میں بھی اس میں تھی جس پہ UAPA لگی تھی, اور 25 مہینے ہم نے جیل کاٹی. میں نے جیل کاٹی, اور آج بھی میرے بھائی بہن اندر ہیں جو جیل کاٹ رہے ہیں. لیکن کچھ انٹولڈ اسٹوریز ہیں, آپ ہمارے بارے میں بہتر جانتے ہیں, یا یہ بھی پتہ ہے کہ عشرت نے جیل کاٹی, پریشانیاں دیکھی, لیکن جس طریقے سے سلمان صاحب نے میرا ساتھ دیا, اور میں کہوں گی میرا ساتھ نہیں, میرے سبھی ساتھیوں کا ساتھ دیا, وہ قابل تعریف ہے. چاہے الیکشن کسی ادارے کا ہو, چاہے کسی علاقے کا ہو, کچھ کنسیڈریشنز ہوتے ہیں. اپنے نیتا سے یہ سوال جواب کیا جاتا ہے, آج بھی ہم جو لوگ بیٹھے ہیں, سوال جواب یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ چن کر آتے ہیں تو علاقے کو یا ادارے کو کہاں تک لے کر جائیں گے, کس روٹ پر لے کر جائیں گے. اگر جیت کے آتے ہیں تو آپ کام کریں گے یا نہیں کریں گے, اگر آپ جیت کر آتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 25,000 پنوں کی چارج شیٹ جو دلی پولیس نے ہمارے خلاف جھوٹی ایک پلندہ تیار کرا, اس میں اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو کم سے کم 1,000 پنوں پہ سلمان صاحب کا بھی نام لکھا ہوا ہے. تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کو پروو کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس ٹائم پر, جس مومنٹ پہ میری اریسٹنگ چلی, تو تھانے کو ایسے نام بند کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی اگر شخصیت وہاں پر آتی تو ٹارچر کے بنا اس کو نہیں چھوڑا جاتا. اور پہلا, میری فیملی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پہلا
वहाँ पे शख्स खड़ा हुआ था, तो सलमान साहब का चेम्बर खड़ा हुआ था, जिसमें मेरे बड़े भाई आसिफ जहाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं पैनल पर, जो सलमान खुर्शीद साहब के यहाँ से भेजे गए थे। तनवीर साहब हैं, एडवोकेट तनवीर साहब, शमीम भाई हैं। मैं नाम लूँगी तो शायद वक्त कम पड़ेगा, मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। और मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात से कि बेदार कर देने वाली कोई भी तकलीफ गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर होती है। हमने वो काम किया, आप लोगों ने वो काम किया। खासकर मैं बात करना चाहूँगी अगर अपनी बहनों की, कि पहला ऐसा बड़ा मूवमेंट था आज़ादी के बाद, जो चादर में रहते हुए चार दीवारी से मेरी बहनें सड़कों पर आ गई थी और सरकार की नींद खोल दी थी। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सलमान साहब की कि उन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया, और बेल हो जाने के बावजूद भी फ्रीडम ऐसी थी कि कंडीशनल बेल लगाई गई कि दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती, और मैं अबुल फजल रहती हूँ जहाँ से सिर्फ 400 मीटर के दूरी पर नोएडा बॉर्डर है। तो मैं सलमान साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह पूरे चेम्बर में प्यार दिया। मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ पे आप लोगों से गुजारिश करने आई हूँ। देखिए, आज हमें ज़रूरत है और वक्त का तकाजा है कि कौन इफ्तार पार्टी करा रहा है, कौन कव्वाली और गज़ल के प्रोग्राम करा रहा है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अगर एक भी इशरत जहाँ पकड़ी जाती है तो सबसे पहले आके हमारे लिए कौन खड़ा होता है। और मुझे बहुत फख्र होता है कि मैं इस ओखला में हूँ और सलमान साहब की सरपरस्ती हम पर है कि हमारे सर पर हमेशा इनका साया बना हुआ है। मैं पूरे पैनल के लिए गायबाना तारुफ है मेरा, अबूजर भाई से भी, आसिफ जा भाई, और जितनी भी मेरी खासकर यहाँ पर बड़ी बहनें बैठी हुई हैं या जितने भी पैनल पर हैं, मैं आप सबको ये गुजारिश करूँगी कि ऐसा पैनल ही आपको नहीं मिलेगा। सोचना नहीं चाहिए। जिस इंसान ने कौम के लिए कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर आगे से क्या परेशानी आ सकती है या पॉलिटिकली मेरे ऊपर कोई उंगली रेज हो सकती है, हमें उस इंसान का साथ देना चाहिए। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सलमान साहब की, और मेरी दुआएं हैं कि हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया, और आज एक बेटी अपने वालिद के लिए और अपने भाई बहनों के लिए आप लोगों से गुजारिश करने आई है, थोड़ी इज्जत रख लीजिएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले और आप यकीन कीजिए कि पिछले सालों में जो तजर्बा हुआ है वो तजर्बा इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है। मैं निज़ामुद्दीन वेस्ट का रहने वाला हूँ। वहाँ जिस तरह से मीटिंगें हो रही हैं और कौन कौन लोग उन मीटिंग्स के अंदर आ रहे हैं, पूरा का पूरा वही प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत वो तक चलाते रहे। उर्दू के दो शेर के ज़रिए मैं आपको अपनी बात को पहुँचाना चाहूँगा कि एक मुस्तकिल अज़ाब को सर पे बिठा लिया, जाने का नाम नहीं ले रहे, एक मुस्तकिल अज़ाब को सर पे बिठा लिया और कह रहे हैं दर्द से दामन बचा लिया, इस सादगी पे दाद तलब है जनाब शेर, चोरों को एहतराम से घर में बुला लिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो इस्लामिक सेंटर की साख को नुकसान पहुंचा है, ये मेरे अंदाजे के हिसाब से ये आखिरी टर्निंग पॉइंट है। इस वक्त अगर हम अपने सेंटर को नहीं बचा पाए तो आगे सिवाय हाथ मलने के और कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप सब हजरात से गुजारिश है कि सिर्फ मीटिंग्स में आना ही ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ अपने यार दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, सब लोगों को कन्विंस करें, रोज़ाना टेलीफोन करें और उनको बताएं कि इस वक्त एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है हमें सेंटर के अंदर जो हमारी खोई हुई साख को बचा सके और खोई साख को स्ट्रेचर को इसको एक मकाम पर ले जाए। बहुत बुरे हालात हैं और इतने बुरे हालात हैं कि आप देखिए पूरा का पूरा शिराजा बिखरा हुआ है। किस तरह से इस्लामिक सेंटर को अड्डा बना करके काम किया जा रहा है और जिस तरह से वहाँ पे किस तरह के लोगों को मेंबरशिप दी है। मुझे जब मैं देखता हूँ कि भोगल का एक छावड़ी वाला जो है उसको भी मेंबर बनाया गया है, तो आप यकीन कीजिए कि मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पापा हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस्लामिक सेंटर में जाने की, वहाँ इतने गैर मेयारी लोग यहाँ पर मेंबर बनाए हैं कि हमें कहते हुए और जाते हुए शर्म आती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरा एजुकेशन से भी ताल्लुक़ है
और मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। तकरीबन 750 बच्चों की नौकरियाँ लगी हैं। मेरे बच्चे जो हैं तकरीबन 24 इमीडिएट फैमिली के अंदर IITs के वेरियस टॉप IITs के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। IIT कानपुर का गोल्ड मेडलिस्ट मेरे घर में है, IIT बॉम्बे का गोल्ड मेडलिस्ट मेरे घर में है, IIT रुड़की का गोल्ड मेडलिस्ट मेरे घर में है, IIT दिल्ली का गोल्ड मेडलिस्ट मेरे घर के अंदर है। तो मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हम एजुकेशन से मुताल्लिक़ हैं, इसलिए कन्विंस करके लोगों को कि इस वक्त हमारे पास एक ही चारा है कि सलमान भाई की लीडरशिप के अंदर पूरे के पूरे इनके पैनल को आमन्ना सद्दकना कह करके इनको कामयाब किया जाए और गिरती हुई साख को और हमारे सेंटर की बका और सेंटर की इज्जत को बचाने की कोशिश की जाए। मैं ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन इन अल्फाज के साथ कि आप सब लोग घर पर आराम से न बैठें, कहीं ना कहीं काविशें और कोशिशें करें और जो मेंबर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। मेरे अंदाजे के हिसाब से 1100 से ज़्यादा पोलिंग नहीं होगा। उसके अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को आप पोलिंग करा सकते हैं वो पोलिंग कराने की कोशिश करें और फिर इंशाअल्लाह आप उसके नतीजे अच्छे मिलेंगे। इन अल्फाज के साथ शुक्रिया बहुत बहुत। और आखिर में फिर मैं कहूँगा कि सलमान भाई के अलावा इस पूरी की पूरी जो इस वक्त भागदौड़ चल रही है, हमारे पास कोई ऐसा सरपरस्त नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे सेंटर को आगे ले जा सके। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं बात कर रहा हूँ तो एग्जीक्यूटिव मेंबर में हमारे मौजम बेग साहब हैं और BOT में हमारे दोस्त हैं। तकरीबन ये 8 लोग 7 या 8 लोग हैं जो सिराज साहब के पैनल से इसमें उनके साथ आए हैं। आप देखिए कि पैनल जो है इससे ज़्यादा मजबूत और क्या होगा। इसमें पॉलिटिशियंस के लिए हालांकि लोग कहते तो हैं, आपने सुना ही होगा लोगों से कि पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं होने चाहिए। अब इस पैनल में आप देखिए, आप लोग सब मेरे से पहले मैं अभी पहुँचाऊँगा, आप वाकिफ़ हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। इस पैनल से मजबूत पैनल कोई भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इनको वोट करें और सपोर्ट भी करें। जहाँ तक और लोगों का सवाल है, पैनल है जिसमें अभी कुछ दिन तक मेरी बात हुई थी इलेक्शन से के दौरान, तो कई लोगों ने कहा कि भाई सिराज साहब के पैनल में हमारी बात कर लो। तो मैंने हमारे दोस्तों ने बात की सिराज साहब से, कहने लगे यार मेरे पास 52 लोग हैं, 52 लोग हैं लड़ने के लिए, बताओ मैं किसे लड़ाऊँगा। अब आप सोच सकते हैं जिसके पास 52 आदमी हों, बंदे लड़ने के लिए हों या शख्सियात हों लड़ने के लिए, उनके पैनल में अब लोग आने को तैयार नहीं हैं। उसमें BOT की अभी भी वैकेंसी खाली है, कोई भी जाकर ज्वाइन कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट अभी भी खाली है, उन्होंने छोड़ रखी है। तो उस पैनल का ये हाल है। और दूसरा एक और पैनल है, कुछ दिन पहले तक वो ये कह रहे थे कि भाई मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। 20 साल उन्होंने काम किया सिराज साहब के साथ, बल्कि वो खुद भी ये कह चुके हैं कि मैं जब चटाई लेकर जाता था इस्लामिक सेंटर में, हम चटाई लेकर अगर आप जाते थे या नमाज़ पढ़ते थे वहाँ या जो भी करते थे या लोगों की खिदमत करते थे, तो 20 साल में आपने क्या किया वहाँ पर? वहाँ करना तो चाहिए था ना काम कुछ। सिराज साहब नहीं कर रहे थे तो आपको करना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि सलमान साहब ने अपनी पहली ही मीटिंग में ये कहा था कि लीडरशिप की कमी रही वहाँ लीडर कोई नहीं, मतलब लीडरशिप उनकी कमी रही, तभी ये लोग, हालांकि इन लोगों ने अबू ज़र वगैरह ने, इन लोगों ने तो बिल्कुल लास्ट में ही खान साहब ने उनको छोड़ा है। तो बस उनके यहाँ वही वन मैन शो था, हम लोग भी उन्हीं के साथ थे, लेकिन वो सुनते किसी की नहीं थे। तो बहरहाल खैर उस पर ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस पैनल को वोट करें, और बहुत मजबूत पैनल है, और पूरी कोशिश करें अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं उनसे भी कहें कि भाई इस पैनल को वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वोटों से उनको कामयाब बनाएं। शुक्रिया। और वो
आते हैं क्यों? ये बुनियादी सवाल है, इस पर गौर करना चाहिए। बीओटी में आ गए, मतलब कुछ शर्म आनी चाहिए भाई, मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में बात नहीं आती। 4 बार प्रेसिडेंट रहने के बाद अब हम बीओटी में आएंगे और साहबजादे को भी एग्जीक्यूटिव में लेकर के आएंगे। कमाल है भाई, चले इसको मतलब कोई तीसरा आदमी सब सुनेगा तो क्या कहेगा? खुद बीओटी में, बेटा एग्जीक्यूटिव में, और जनाब सदर जो हैं, पहले तो पर्दे के पीछे से काम चलता था। रब्बीस को बुला लिया, कहने लगे अरे भाई यूँ बुलाया, चलो कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री की हिमायत कर दी, तो भाई तो प्रधानमंत्री हैं, फोटो लगवा दिया, प्रधानमंत्री के लगवा रहे हैं। फिर उसके बाद पता ये चला कि अब जो है सीधे कौन लड़ रहा है। अपने लोगों की मीटिंग बुला के कह रहे हैं कि भाई ये है, उनको प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार को कोई जानता ही नहीं, कोई जानता नहीं। उन्होंने बताया अपने लोगों से कि भाई ये मिस्टर एक्स हैं और जिनकी ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने कहा कि बड़े पैसे वाले हैं। अब ये क्यों कहा, मेरी समझ में बात नहीं। ये जो है फला के खास आदमी है भगवान के, इनका नाम फला ऑफिस से आया है, जो सबसे बड़ा ऑफिस हिंदुस्तान का है, राष्ट्रपति के बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है। इस सब में इशारों में कह रहा हूँ, नाम वाम लेने से कोई फायदा नहीं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाथ तुम्हारा जाने है, इसलिए मुझे ज्यादा उसमें कहने की जरूरत नहीं है। फैसला आपको करना है कि आपको किस तरह के लोगों को सेंटर को सौंपना है। एक तरफ सीधे सलमान खुर्शीद हैं, जिनकी शख्सियत मुताबिक ताल्लुक नहीं है। अब मैं कुछ इनके बारे में नहीं कहूँगा, न होगा कि मैं जरा सामने तारीफ वारीफ करता नहीं, मुझे जहाँ करनी होती है मैं करता हूँ। एक तरफ सलमान खुर्शीद और एक तरफ कौन लोग हैं, आप जानिए कि आने के बाद सेंटर में क्या होगा, जो इनडायरेक्टली होता था डायरेक्टली होगा। इसी दो में आपको चुनना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ की गुंजाइश नहीं है, कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन बोलने वाले सामने नहीं है, बोलने वाले 250 तमाम लोग हैं। मैं खाली एक बात कह के अपनी बात बंद करता हूँ। बहुत हो गया, अब अंधेरों के मुकाबिल आफ्ताब आया ही करता है, अंधेरों के मुकाबिल आफ्ताब आया ही करता है। बशर बेचैन हो तो इनकलाब आया ही करता है, और पुराने सागरों में जब खनक बाकी नहीं रहती तो गर्दिश में नया जामे शराब आया ही करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।